All right, hi everyone, good morning. Yeah, hi Jyot, hi Pranav. Morning Chitraksh, morning Purva, good morning Ria. All right. So last class में आप लोगों के साथ में मैंने डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस डिस्कस करा था. उसमें any questions, any concerns? Allow unmute. हाँ. सर आज आपकी आवाज आके एकदम ब्रेक हो गई. कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, बोलो बोलो आर्यन. क्या ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल? बोर मॉडल का ड्रॉबैक कहाँ पढ़ाया मैंने अभी आपको? बोर्स मॉडल की तो मैंने सिर्फ तारीफें ही करी है. लास्ट क्लास में जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसमें जस्ट मैंने बताया था दैट बोर्स मॉडल वाज अ गुड मॉडल बट ओनली फॉर अ फ्रॉम अ पार्टिकल पर्सपेक्टिव. Considering electron as particle, Bohr's model was able to successfully give us certain results, and then came in this new way of thinking, new thought process, in which de Broglie proposed that we can also think of electron as a wave, right? Explore that wave nature, and based on that come up with the results. And ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे. ठीक है. इनफैक्ट आई थिंक ये वाला एक क्वेश्चन था जो कि लास्ट में नोट्स में था बट हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए थे. बट आई थिंक काफ़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही था कि अगर हम एक अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट्स तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या रहेगा. एंड ये वाला फॉर्मूला अगर आप यूज़ करोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा बिकॉज ये वाला फॉर्मूला जो है हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाला है. ठीक है. फॉर एनी अदर पार्टिकल यू नीड टू यूज़ द जनरल फॉर्मूला जो हम लोगों ने ये किसी भी पार्टिकल के लिए ऑफ मास m चार्ज q एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट्स वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो उससे हमारा करेक्ट आंसर आएगा. हाँ, बोलो नैन. Yes, sir. I have two doubts. Firstly, sir, you had told us that it is insignificant, as in the wave nature. It is insignificant at the larger scale. So, in case of a tennis ball, it will be insignificant, हाँ, and that's because the wavelength will be very small, like 10 raised to minus 34. as So, compared to the object size of itself. it. Yeah. So I didn't understand the logic behind why if it is proportional to the size of the object, it will be significant. It is going to be experimentally detectable. It is going to be experimentally observable. You can think of or design experiments in which you can explore those properties and see their effect. जैसे for example, if let's say you want to explore the wave nature associated with electron, then you can do a double slit experiment with electrons. Yeah. जैसे अपन लाइट के साथ करते हैं वैसा आप डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स के साथ करोगे. कैसे? लाइक यू प्रिपेयर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सम सोर्स. ठीक है. लेट्स से कोई मेटल है, आपने उस मेटल को हीट अप करा. ठीक है. हीट अप करने से उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लग गए. राइट. नाउ यू मेक अ बीम आउट ऑफ देम. ठीक है. यू एक्सेलरेट देम थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. एंड मेक अ बीम आउट ऑफ देम. तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन बीम हो गया. अब इस इलेक्ट्रॉन बीम को you pass through double slit and then notice what is the pattern that is forming on the second screen. So you will be observing or you will be able to understand the wave nature associated with electrons. But if you try to do the same experiment with say tennis balls, right, it will be extremely difficult for you to be able to
experimentally come up with the wave nature. Okay, I got that. And so for the formula of the wavelength according to the de Broglie hypothesis, you said that the root 150 it is obtained by substituting the value of h, m, and q, right? हाँ, तो सर अगर वैसे है तो then we can write it as root 150 upon v, but how can we write it as root 150 upon kinetic energy, because kinetic energy itself is q and v. नहीं, so उसमें if you remember for electrons हम लोगों ने डिस्कशन किया था ना, that if the electron is at rest, ठीक है, and it is accelerated through a potential difference of say 5 volts, right, then उसका final kinetic energy कितना हो जाता है? 5 volts, 5 eV. sorry, 5 ev, yeah. बस वही तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर. पर सर अगर काइनेटिक एनर्जी q बाय v है और q का वैल्यू हमने ऑलरेडी ले लिया है वो 150 में है, तो हम लोग नीचे काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख सकते हैं? इट वुड बी ओनली v, राइट? हाँ, सो जो अब यहाँ पर आपने इतना कर दिया, ठीक है, या यहाँ तक का आप लेके आ गए. अब मैंने आपको ये बताया कि whenever you have an electron at rest, ठीक है, उसको आप किसी v पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट करते हो, ठीक है, v वोल्ट्स के थ्रू एक्सेलरेट करते हो, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो Yes, सेम v वैल्यू आ जाता है इन द हाँ यूनिट्स सर, ऑफ ev. या आई गॉट इट, सर. ठीक है, ऑलराइट. सो आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करोगे? मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में. सर डीपीपी. डीपीपी दिया था ना, ठीक है, ठीक है, चलो ट्राई कर लो उसको. आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट राइट सर आई नाउ. हैव अ डाउट. हाँ, ये आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट वापस एक बार समझा सकते हो क्या? कौन सा वाला? इसका ही. नहीं नहीं, ये तो शुरू ही नहीं हुआ अभी तक. अभी तक ओके 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 ओके. अभी मैं शुरू करूंगा, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन टुडे. And after de Broglie's hypothesis, I would want to spend some time today on another very, very important, extremely important discovery that happened around that time, that further helped develop quantum mechanics, helped develop a new way of understanding things at a small scale. It's called Heisenberg's uncertainty principle. Now, as such, Heisenberg's uncertainty principle is a very general statement, a very fundamental statement, something which deals with the reality or a truth of our universe that we may experience in general in life. The general statement, if I would try to simplify it, try to put it in very trivial terms, a general statement of Heisenberg's uncertainty principle है, sometimes कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. ठीक है, एकदम अगर फिल्मी स्टाइल में एकदम सिंप्लीफाई करके आपको बताऊं मैं, तो दिस इज व्हाट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सेज. एक जनरल वर्जन जो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का है कि अगर मैं किसी सिस्टम को, ठीक है, कोई एक सिस्टम, सिस्टम कुछ भी हो सकता है, लाइक एनीथिंग दैट वी आर स्टडीइंग इज अ सिस्टम, करेक्ट. You can be a system, I can be a system, an electron can be a system. एक सिस्टम को जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसकी प्रॉपर्टीज समझने की कोशिश करते हैं, राइट. दैट इज द वे इन विच वी स्टडी अ सिस्टम. सो व्हाट हाइजेनबर्ग सेज इज दैट फॉर अ सिस्टम देयर आर certain set of properties. He calls them complementary variables. कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज, कुछ ऐसे सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं कि अगर हम
उनमें से एक को एक्यूरेटली डिटरमाइन करने की कोशिश करें तो दूसरे की एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, दूसरे की एक्यूरेसी कम हो जाती है। ठीक है, जैसे आप लोग अभी जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, दैट इज वन फीचर, वन प्रॉपर्टी अबाउट यू, तो आपकी सोशल लाइफ स्क्रू अप हो ही जाएगी, वो एक ट्रेड ऑफ रहेगा। तो वैसा ही एक सेट जो कि हमारे सिलेबस में है, हमारे पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो होता है एक सिस्टम का, एक पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम। तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर अस इज समथिंग एज फॉलोज, दैट अगर हम एक पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट मोमेंटम साइमल्टेनियसली डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे तो विल फेस अ चैलेंज। अगर हम एक को एक्यूरेटली डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे तो दूसरे की एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। स्टेटमेंट समझ में आया आप लोगों को? व्हाट इज द इंग्लिश बिहाइंड इट? Sir, could you please tell what exactly do you mean by exact position? हाँ, सो व्हेन आई से दिस स्टेटमेंट, डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक दिमाग में डाउट आता है कि ये स्टेटमेंट तो मतलब समझ में ही नहीं आ रहा, इट फील्स वेरी एब्सर्ड। Why does it feel very absurd, sir? Because in general, like when we study physics, when we study particles and their motion, and we study the properties of that particle, like उसका position, like उसका momentum, तो ऐसा तो हमने कभी encounter करा नहीं। Like we have been very clear in terms of measuring position and momentum and doing our calculations। मतलब जैसे for example, if I take tennis ball as an example again, if I take the example of a tennis ball again, right, यहाँ पर let's say tennis ball present है किसी position x equal to 0 time t equal to 0 पर, and ये straight जा रही है, ठीक है, and say after time equal to 1 seconds, ठीक है, यहाँ पर हमने टेनिस बॉल नोटिस करी और इसने डिस्टेंस लेट्स से 0.2 मीटर ट्रैवल कर लिया, राइट। तो हमें इसकी पोजीशन भी पता है और हम लोग ऐसे डिस्टेंस अपॉन टाइम करके स्पीड भी निकाल लेंगे, डायरेक्शन भी पता है तो वेलोसिटी भी निकाल लेंगे, मोमेंटम भी निकाल लेंगे। से मान लो 0.1 kg का बॉल है तो लाइक सब कुछ तो आ रहा है। देन वेयर इज दिस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल coming from? Where is this uncertainty principle playing a role? तो ये ऐसे ऊपर ऊपर के लेवल पर नहीं समझ में आएगा, इसके लिए हमको कुछ सोचनी पड़ेंगी चीज़ें, कुछ थॉट एक्सपेरिमेंट्स समझने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। सो जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट विद सम सिंपल थॉट एक्सपेरिमेंट। मान लो आप सब के सब एक रूम में हो, ठीक है, यू आर इन अ रूम and it's a completely dark room, like you can't see anything, and उस रूम में कहीं पर, ठीक है, there is a metal ball that is present, ठीक है, metal ball present है and completely dark room है, and आपको बोल दिया that you know you have these say small ball bearings with you to locate where the metal ball is present। तो आपके दिमाग में क्या थॉट आएगा? हाउ वुड यू ट्राई, हाउ वुड यू प्रोसीड विद दिस? With the help of sun. आपको दिख नहीं रहा है, एक डार्क रूम है, ठीक है, उसमें कहीं पर एक से मेटल ऑब्जेक्ट या मेटल बॉल रखा हुआ है बड़ा सा, एंड आपको उसका लोकेशन फिगर आउट करना है।
एंड आपके पास जो टूल है वो है, so you have some small ball bearings with you, so what will you start doing? So you try to like throw the balls on the metal ball and see if it makes sound, and if it's properly, then you'll hear sound. Right, so what you are trying to do is you are trying to make an observation. ठीक है, and to make that observation you need some interaction to happen, and based on that interaction you get a feedback with which you will be able to then ascertain, say, position of the metal ball, right? आप बॉल बेयरिंग्स थ्रो करोगे, ठीक है, आप नोट करते जाओगे कि मैंने किस डायरेक्शन में बॉल बेयरिंग थ्रो किया है, एंड देन बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशंस मेड, अगर आपको साउंड आएगा, डिटेक्ट करोगे आप, तो आपको पता पड़ेगा कि मेटल बॉल का पोजीशन कहाँ पर था, ठीक है। अब ड्यूरिंग दिस ऑब्जर्वेशन यहाँ पे समझना, ड्यूरिंग दिस ऑब्जर्वेशन is it likely that during the measurement, once you like struck the metallic ball with the ball bearing, you might have influenced the position of the metal ball? Yes. Yeah. So when we are making that observation, when you are trying to ascertain that property, that observation in fact led to or might lead to change in the properties associated with that metal ball. तो अब अगर मैं आपके सामने वापस से स्टेटमेंट रीड करूं, that if you were to say determine the exact position and exact momentum of a particle simultaneously, then are you seeing a challenge? That when I did this measurement, I might have influenced the momentum. मैंने इस मेटल बॉल को बॉल बेयरिंग्स के थ्रू लाइक कोलाइड करवाया, इसकी पोजीशन डिटेक्ट करी, बट जब मैंने पोजीशन डिटेक्ट कर ली तो उसकी वजह से हो सकता है उसका मोमेंटम, उसका डायरेक्शन इन्फ्लुएंस हो जाए। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. But could we measure by how much it would change? Then we could correct for that. हाँ, सो अब यहाँ पर आप नोटिस करो that in general in life, ठीक है, you don't encounter this problem, ठीक है, कैसे? Because for observations to be made, we use what? Photons, we use electromagnetic radiations. तो लेट्स से मैं एक टेनिस बॉल और टेनिस बॉल की पोजीशन, मोमेंटम निकालने के बारे में बात कर रहा हूँ, तो हम लोग उसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे? हाउ डू वी मेक दोज ऑब्जर्वेशंस? वी टेक हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, photons. We strike that photons strike that tennis ball, and those photons then reflect back into our eyes, and we are able to make that measurement, that यहाँ पर ये tennis ball present है. And the thing is that those photons aren't really able to influence much the tennis ball. ठीक है, वो photons के strike करने से वो tennis ball इधर उधर खिसकता नहीं है, इतना कुछ खास influence नहीं होता. तो मैक्रोस्कोपिक स्केल पर, at a larger scale, we don't find this problem to be of a big impact. We are like okay, इसमें ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें इतनी कोई बड़ी एरर आ ही नहीं रही है. We are able to understand and do things still quite well
एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू दैट कैलकुलेशन भी हम लोग आगे की कर लेते हैं. बट नाउ अंडरस्टैंड दैट एट अ स्मॉलर स्केल, at an atomic scale, subatomic scale, if I have to do measurements, say for electron, ठीक है, क्या तरीका है मेरे पास इलेक्ट्रॉन का मेजरमेंट करने का? Like if I have to locate an electron, how is it that I would be able to do? I will have to make that electron interact with a photon, है कि नहीं? If I have to say understand the location, ठीक है, लोकेशन बोल लो या एग्जैक्ट पोजिशन बोल लो, of an electron, if I have to detect that, then I should strike it with photon, and based on how that interaction with photon happened, ठीक है, वो photon reflect हुआ, उसने उसको मैंने measure करा, तो I would be able to know the position of the electron, है कि नहीं? And the problem that is there is that if I want to determine the position as accurately as possible, ठीक है, अगर मुझे पोजीशन की एक्यूरेसी बढ़ानी है तो मैं फोटोन कम से कम वेवलेंथ का यूज करना चाहूंगा. अगर मैं ज्यादा बड़ा वेवलेंथ का फोटोन यूज करूंगा, सो हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट ही नहीं करे. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, लाइक इलेक्ट्रॉन काफ़ी छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे डिटेक्ट करना है, अगर मैं रेडियो वेव्स यूज करने लग जाऊं, तो डू यू थिंक आई वुड बी सक्सेसफुल? रेडियो वेव्स जिनका वेवलेंथ ऐसे मीटर्स ज़्यादा. किलोमीटर्स में होता है, Yeah. Sir, but the accuracy would be compromised. बट अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एक्यूरेट डिटरमाइन करना है, देन आई वुड वांट टू यूज वेवलेंथ्स, ठीक है, फोटॉन्स जिनका वेवलेंथ इज मच स्मॉलर, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस अगर वेवलेंथ स्मॉलर है फोटॉन का, तो उनका एनर्जी कैसा रहता है? Large. एनर्जी काफ़ी बढ़ जाता है. एंड वंस दैट फोटॉन ऑफ अ हायर एनर्जी इंटरैक्ट्स विद द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हम लोग पोजीशन की एक्यूरेसी भले ही बढ़ा देंगे, बट जब वो इंटरैक्शन होगा, व्हेन दैट फोटॉन इन्फ्लुएंसेस और interacts with that electron, then it will also affect the properties of the electron. It will also influence, say, direction. ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन, लेट्स से इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन था, ये इलेक्ट्रॉन मान लो लेफ्ट से राइट जा रहा था, एंड वी स्ट्राइक अ फोटॉन टू इट टू मेजर इट्स पोजीशन. हम लोग कम एनर्जी का फोटॉन स्ट्राइक कर देंगे उसकी पोजीशन एक्यूरेट डिटरमाइन करने के लिए, बट आफ्टर दैट इंटरैक्शन what happens is that the direction associated with that electron, उसकी जो accuracy है, ठीक है, जो हम बोल रहे थे कि पहले ये लेफ्ट टू राइट जा रहा था, अब वो क्वेश्चन में आ जाएगी. वी विल नॉट बी एबल टू से कि अब ये लेफ्ट टू राइट ही जा रहा होगा. इट माइट हैव सम अदर डायरेक्शन नाउ. सो अगेन स्टेटमेंट ध्यान से सुनना. हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन किसी पार्टिकल का डिटरमाइन कर सकते हैं, हम लोग एग्जैक्ट डायरेक्शन या एग्जैक्ट मोमेंटम भी किसी पार्टिकल का डिटरमाइन कर सकते हैं. प्रॉब्लम कब आ रही है? व्हेन वी आर सेइंग दैट वी आर एबल टू मेजर देम साइमल्टेनियसली. दैट इज वेयर वी आर गेटिंग अ प्रॉब्लम फ्रॉम Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle says that there is a trade-off, and that is the reality of the universe,
that trade-off exists between properties, for example position and momentum, that you can't determine both of them simultaneously with 100% accuracy. अगर आप एक डिटरमाइन करने जाओगे तो दूसरे की एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज होती ही होती है. एंड ये तो कैसा है, ये तो एक थॉट एक्सपेरिमेंट था. दिस वाज समथिंग व्हिच वाज द स्टार्टिंग स्टेप दैट केम टू हाइजेनबर्ग्स माइंड. हाइजेनबर्ग ने ऐसा सोचा. एंड डेफिनेटली अदर क्वेश्चंस आल्सो केम टू द माइंड. ठीक है, जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर व्हाट इफ वी डू द मेजरमेंट्स इन दिस वे दैट वी आर एबल टू डिटेक्ट व्हाट हैपेंस आफ्टर द इंटरेक्शन एंड ऑल ऑफ दैट. राइट, किसी ने पूछा था ना अभी. So I asked whether we could measure the influence, like if we know the influence we would do by measuring, could we then correct for our results? हाँ, so understandably this kind of thought process comes to the mind, and that is where when Heisenberg presented his principle, it was not just the thought experiment that he did. He did एकदम rigorous mathematics behind it. He tried to understand that if I was to analyze this thought experiment through the laws of physics, through whatever was known to science at that point in time, through whatever maths, through whatever physics was known, using that, if we try to analyze this everything mathematically, okay, this simple interaction, and based on that come up with the answer of accurate position and accurate momentum. Okay, he said that if the dual nature is to be taken into account, if that dual nature is correct, then we are not going to be able to determine the exact position and exact momentum simultaneously. हाँ, अगर सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर को अकाउंट में लिया जाए, लाइक वी डोंट एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. ठीक है, उस टाइम पर एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स का वर्ल्ड शुरू ही हो रहा था, तो उस टाइम पर सब क्लासिकल फिजिक्स चल रहा था. ठीक है, क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स वर देयर. सो अगर मैं क्लासिकल लॉज के पर्सपेक्टिव से ये सब सोचूंगा, देन तो the scientists were like, no, we can determine the exact position, we can determine the exact momentum, and it can be done simultaneously, but based on the dual nature. Okay, if we take into account both the particle nature and the wave nature of how de Broglie proposed it, then Heisenberg says that this statement holds true. You can't determine the exact position and the exact momentum of a particle simultaneously. And he said that this is something which can be seen in real life also. For example, there is this interesting video related to photons and photons का measurement. ठीक है, मैं चाहता हूँ आप लोग वो वीडियो डेफिनेटली एक बार नोटिस करो, ऑब्जर्व करो. ठीक है, छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है. किसके ऊपर रहेगा वो वीडियोस? वो वीडियो रहेगा फोटोन के ऊपर, फोटोन के मेजरमेंट के ऊपर. So through an experiment, we will be trying to determine the exact position of photon. And आप notice करना, in doing so, we would be compromising on the exact direction associated with the photon. ठीक है, किस तरीके से? Just give me 1 minute. I'll share that video with everyone. एक मिनट, कहाँ गया? हाँ,
मैं यहीं पे चैट बॉक्स में सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आर यू एबल टू क्लिक ऑन द लिंक? ठीक, छोटा सा वीडियो है 2 मिनट का, फटाफट देखो एंड वापस आ जाओ। ऑलराइट, देखा आप लोगों ने सबने वीडियो? Yes, sir. ठीक है, सो वीडियो कैसा था? वीडियो वाज अ वेरी सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या हो रहा था? देयर वाज अ लेजर लाइट, ठीक है, कमिंग फ्रॉम सम सोर्स, ठीक है, देयर आर, यू कैन से, photons, a beam of photons was coming, ठीक है। now if I ask you the position of these photons right now, what will be your answer? If I ask you the position of photons in this beam, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे कि सर the photons and their position could be anywhere between this region, ठीक है, there is some uncertainty, एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा मैं फोटोन कहाँ पे होंगे,
but what I can say is that they would be between this and this region, है कि नहीं? Yeah, sure. Okay, now what we are doing is we are making these photons pass through a slit, ठीक है, an opening, and these photons are striking another screen, and उस स्क्रीन पर उन photons की वजह से एक प्रोजेक्शन बन रहा है, राइट? अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ये स्लिट की साइज को छोटा करते जा रहे हैं. हम लोग इस स्लिट की साइज को छोटा करने से क्या कर रहे हैं, जो ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन थी, बढ़ा रहा है। है ना, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये डेल्टा एक्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्या है? दिस इज द अनसर्टेनिटी और एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन. अनसर्टेनिटी और एरर इन पोजीशन. तो अगर मैं ये स्लिट का साइज छोटा करता जा रहा हूँ, राइट, तो मैं ये अनसर्टेनिटी कम करता जा रहा हूँ, ठीक है. आई एम मोर एंड मोर एक्यूरेटली ट्राइंग टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ फोटॉन्स, द पोजीशन ऑफ फोटॉन्स, है कि नहीं? लेकिन व्हाट हैपेंस इज, ठीक है, स्टार्टिंग में तो एक्चुअली जब आप स्लिट को क्लोज कर रहे हो तो ये प्रोजेक्शन भी छोटा होता जाता है, ठीक है. स्टार्टिंग में कुछ ऐसा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं फील होता है, नहीं दिखता है. बट व्हेन द स्लिट इज वेरी स्मॉल, ठीक है, व्हेन द स्लिट का साइज इज वेरी स्मॉल, ठीक है, किस साइज का रह जाएगा ये, जो वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स होगी उसके आसपास के ऑर्डर का, ठीक है, उतना छोटा जब हो जाता है, ठीक है, स्लिट का साइज, तो what is it that we find, what is it that we observe? We observe that photons जो पहले स्ट्रेट जा रहे थे उनका डायरेक्शन कैसा था, लेफ्ट टू राइट. अब rather than going in that direction, उनके डायरेक्शन की अनसर्टेनिटी, ठीक है, डायरेक्शन की अनसर्टेनिटी मतलब जो उनकी वेलोसिटी थी या उनका मोमेंटम था उसकी अनसर्टेनिटी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, फोटॉन्स की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड तो स्पीड ऑफ लाइट रहता है, वो तो कांस्टेंट रहता है ना. उनका जो डायरेक्शन है, पहले वो जो स्ट्रेट जा रहा था, अब रादर देन गोइंग स्ट्रेट वो फोटॉन्स का डायरेक्शन अनसर्टन हो जाता है. वी स्टार्ट सीइंग कि ये जो प्रोजेक्शन है ये फैलने लग जाती है, ठीक है, रादर देन श्रिंकिंग इट स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग. क्यों? क्योंकि फोटॉन्स अब स्ट्रेट जाने की जगह दे आर गोइंग इन अनसर्टन डायरेक्शंस. तो जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है वो बढ़ जाता है. तो यहाँ पर जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज वेयर वी आर डूइंग द मेजरमेंट, ठीक है. जब तक मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं तब तक हम लोग हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं. जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन, ठीक है, थ्रू दिस वे, ठीक है, हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं फोटॉन्स की. तो व्हाट हैपेंस इज that we simultaneously screw up or increase the uncertainty in momentum. and वो uncertainty कैसे यहाँ पर आपको दिख रही है, manifest होती हुई, it is manifesting not in terms of magnitude but in terms of direction, ठीक है. तो जो मेरा फोटॉन का velocity था, ठीक है, जिसका magnitude was speed of light and the direction was more or less left to right only, वो अब left to right ना होकर, ठीक है, उसके डायरेक्शन में चेंजेस आ जाते हैं. समझ में आया वो एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था? सो दिस इज समथिंग Yes, sir. which is the fundamental reality, ठीक है. if you repeat this experiment,
not with photons. Let's say you decide to do this experiment with electrons, you will find this to be holding true. ठीक है, instead of photons. ठीक है, photons तो काफी easy था हमारे लिए ऑब्जर्व करना, इसलिए वीडियो आपके सामने मैंने शो करा. बट इफ यू रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो, rather than a beam of photons, if you throw a beam of electrons through a single slit, the condition for the slit has to be very small. अगर slit छोटा नहीं होगा, बड़ा होगा, तो फिर like the photons, like क्योंकि uncertainty in position भी बड़ा होगा, तो uncertainty in momentum भी ज़्यादा नहीं होगा, वो जो electrons है वो straight forward ही जा रहे होंगे. बट अगर ये आप स्लिट के साइज को छोटा करके मेजरमेंट लेने की कोशिश करोगे कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, कहाँ से ये निकल रहे हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स रादर देन गोइंग स्ट्रेट दे विल बी गोइंग इन रैंडम डायरेक्शंस. एंड दिस इज वेरी वियर्ड. व्हाई इज दिस वियर्ड? Because of a fundamental reality that we just studied in previous class, that matter has dual nature. It has got particle nature as well as wave nature. सर आई हैव अ डाउट. हाँ. सर हम कोई भी पार्टिकल, मतलब लेट इट बी फोटोन और इलेक्ट्रॉन्स, उसका हम हाउ विल वी डिटरमाइन कि अगर हम उसका बीम यूज कर रहे हैं तो कितना बड़ा स्लिट का साइज कितना बड़ा होना चाहिए? सो मैंने बताया ना, टिपिकली जो स्लिट का साइज होना चाहिए वो, अगर हम बैक कैलकुलेशन करें डी ब्रॉगलीज इक्वेशन यूज करके, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, तो जो वेवलेंथ आ रहा है उसके ऑर्डर्स में स्लिट का साइज रहेगा, तो दिस बिकम्स ऑब्जर्वेबल. ओके. ठीक है. तो जैसे आपने जो एक्सपेरिमेंट देखा था उसमें कैसा था, दैट फोटॉन्स वगैरह यूज कर रहे थे, रेड लाइट के फोटॉन्स यूज कर रहे थे, एंड वो स्लिट का साइज स्टार्टिंग में तो लाइक कोई दिक्कत ही नहीं आई. स्टार्टिंग में तो जैसा लाइक हमें पार्टिकल वर्ल्ड की क्लासिकल फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग थी वैसा ही हो रहा था कि अगर हम स्लिट को छोटा कर रहे हैं तो ये प्रोजेक्शन भी छोटी हो जा रही है. ठीक है, ओनली एट द कस्प ऑफ द स्लिट्स क्लोजिंग डाउन, ठीक है, एकदम शट डाउन हो जाए, लाइक बिल्कुल ही एकदम चिपक जाए, उसके जस्ट पहले, ठीक है, when the opening is very small, this uncertainty principle reveals itself. It reveals something which is very intricate and a fundamental reality of the universe. ठीक है, and this was something जिसके लिए हाइजेनबर्ग को नोबेल प्राइज भी मिला था. ठीक है, एंड जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं था कि दिस वाज जस्ट पोजीशन एंड मोमेंटम जिसको लेकर हाइजेनबर्ग ने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रेजेंट किया था. इनफैक्ट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज मच मोर प्रोफाउंड. देयर आर मेनी अदर सच सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, जैसे यहाँ पे पोजीशन मोमेंटम मैंने आपको बताया, देयर आर सम अदर सेट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑल्सो विच आर गवर्न्ड बाय दिस प्रिंसिपल ऑफ ट्रेड ऑफ. ट्रेड ऑफ वर्ड समझ में आता है ना सबको? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. सो देयर आर सच ट्रेड ऑफ्स दैट एग्जिस्ट, दैट अगर हम एक प्रॉपर्टी को एक्यूरेटली डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे तो दूसरी प्रॉपर्टी की एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी. ठीक है, एंड एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो दैट दिस हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, ये मैं इसको थोड़ा सा और आपको पढ़ाने के बाद में, डिस्कशन करने के बाद में, मैं एक स्टेटमेंट आपके साथ डिस्कस करूंगा जैसे मैंने डी ब्रॉगलीज के साथ में डिस्कस किया था. That if you ask me Heisenberg's uncertainty principle, is it applicable at all scale, microscopic, macroscopic? The answer is yes, it is applicable at all scale. ठीक है, टेनिस बॉल पर भी एप्लीकेबल है, एक ट्रेन पर भी एप्लीकेबल है, एक प्लैनेट पर भी एप्लीकेबल है. However, the thing is that its significance starts to become important only at small scale. Okay, when we deal with atoms and subatomic particles, then we find it is playing a very important role and a significant role in understanding the properties of those particles.
ठीक है, टेनिस बॉल पर मैं इसको अप्लाई करूंगा तो मेरे लिए इतना झंझट भरा काम नहीं होगा। ठीक है, कैसे? क्योंकि आप इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट देखोगे। ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट इसका कुछ इस तरीके से है। कैसे आया वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट, वो मत डेरिवेशन में नहीं जाएंगे हम लोग, बट अगर मैं आपको लाइक टेनिस बॉल पर ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करके दिखाऊं। ठीक है, मान लो एक टेनिस बॉल है, ठीक है, और टेनिस बॉल आपकी है से 0.1 kg की, और वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ठीक है, एंड जो आपको मोमेंटम मिला, मोमेंटम कितना हो जाएगा, 1 kg मीटर पर सेकंड, है ना। अब मान लो कि उसकी जो अनसर्टेनिटी है मोमेंटम की मेजरमेंट की, वो 1% है। ठीक है, लेट्स से द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम इज 1%, राइट। अब अगर मैं उस अनसर्टेनिटी इन पोजिशन के बारे में बात करने की सोचूं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, तो कैन यू डू अ क्विक कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कैसा रहेगा, ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई डेल्टा पी, है ना। ये डेल्टा पी को मैं राइट हैंड साइड लेके आ जाऊं, अब ये कैसा दिख रहा है आपको, ये 10 की पावर -34 के ऑर्डर का है। ठीक है, एंड ये 4 इंटू 3.14 इंटू 0.1 बाय और 1/100 इंटू 0.1 ऐसा कुछ रहेगा। तो कैन यू सी द डेल्टा एक्स का वैल्यू बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है? एक रफ एस्टिमेशन से डेल्टा एक्स का वैल्यू कैसा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है? As compared to the size of the tennis ball itself, ये इतना इनसिग्निफिकेंट है, ये इतना छोटा है कि हम लोग रियल वर्ल्ड में इसके बारे में बॉदर ही नहीं करते। वी आर लाइक कि ठीक है, होगी इतनी एरर तो होने दो, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता ना। मतलब मेरी टेनिस बॉल है जिसका डायमेंशन सेंटीमीटर्स में है और उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी ऐसे पिको फेमटो एटोमीटर्स में जा रही है, तो आई बी लाइक कि नहीं ना, मेरे लिए कुछ इसका इतना प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ही नहीं है, आई डोंट केयर। But if we apply this at a smaller scale, ठीक है, then it becomes something which is significant. ठीक है, क्लियर है? Yes. Could you please again explain the relationship between uncertainty of and error in position and momentum with an example? हाँ हाँ, हम लोग एग्जाम्पल तो बहुत सारे करेंगे। अभी के लिए what I would want you to understand is the statements one after the other. ठीक है, सबसे पहला ये स्टेटमेंट आपको क्लियर है, the Heisenberg's uncertainty principle statement that we are dealing with. Yes, sir. ठीक है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। It is not possible to determine the exact position and exact momentum of a particle simultaneously. Now, this statement is mathematically supported based on what Heisenberg did. He presented his result that uncertainty in position, ठीक है, डेल्टा एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अनसर्टेनिटी और एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजिशन। डेल्टा पी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, अनसर्टेनिटी और एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ठीक है, या फिर ये h अपॉन 4 पाई में जो h क्रॉस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये h क्रॉस बेसिकली h अपॉन 2 पाई है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत जगह पर ये h अपॉन 2 पाई सिंबल आता है, तो उसको एक और शॉर्टर सिंबल, एक और सिंपलर सिंबल, ऐसे ये h और h के ऊपर ऐसे क्रॉस का साइन, इसको h क्रॉस या h बार बोलते हैं। ये ऐसे कई जगह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, h stands for Planck's constant and this h cross या h bar is called as reduced Planck's constant. ठीक है, it is h upon 2 pi. Now what is the statement
का सिंप्लीफाइड अंडरस्टैंडिंग, इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट का सिंप्लीफाइड अंडरस्टैंडिंग ध्यान से समझना है यहाँ पर. इफ डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई. ठीक है, तो अगर डेल्टा x डिक्रीज कर रहा है, इफ यू आर रिड्यूसिंग डेल्टा x, व्हाट डू आई मीन बाय रिड्यूसिंग डेल्टा x? ठीक है, दैट इफ वी ट्राई टू मेजर द पोजीशन एक्यूरेटली, हम अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन कम कर रहे हैं, देन ऑटोमेटिकली जो डेल्टा p का वैल्यू है वो बढ़ जाएगा. दैट इज द measurement of the momentum becomes inaccurate. The error or the uncertainty in the measurement of the momentum increases. Okay, and this was something that I demonstrated through that particular video जो मैंने आपके साथ में शेयर करा. That is that of the photon जो एक वो स्लिट के थ्रू पास हो रहा था. ठीक है, यहाँ तक का पार्ट क्लियर है सबको? इसमें कोई चैलेंज, कोई क्वेश्चन? No, sir. नाउ अब So इसी के साथ में, हाँ हाँ बोलो बोलो. So am I audible? आपकी आवाज आ रही है बट इट्स नॉट कमिंग दैट गुड, बट ठीक है बोलो. So in that experiment, if we make the slit narrow, then actually we don't see the thing getting wider. So why does it happen? Does the like being getting wider become visible only at microscopic level? आपकी आवाज बहुत ज्यादा एको कर रही है. आर यू सिटिंग इन सम प्लेस जहाँ पर बहुत ज्यादा एको हो रहा है? कैन यू यूज अ माइक और समथिंग टू स्पीक? No, sir. I am using a mobile phone. So हाँ हाँ अभी आ रही है आवाज, अब बोलो. So I was asking that if like initially when we make the slit narrow, then at that time like we don't see the light beam getting wider. So when we make it really narrow, then we see the light beam getting wider. हाँ So is it because it becomes visible only at microscopic level? हाँ, सो यहाँ पर नोटिस करना, जब तक जो स्लिट का साइज था वो बड़ा था, ठीक है, यानी कि जो डेल्टा एक्स है ये इतना छोटा नहीं हुआ. ठीक है, स्लिट का साइज बड़ा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फोटॉन्स इतनी पोजीशन के बीच में होंगे. लाइक दिस इज आवर अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन. Yes, sir. ठीक है, तो जब ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन लार्जर है, ठीक है, तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम स्मॉलर है. यानी कि जो वो फोटॉन्स का डायरेक्शन था वो मोर और लेस लेफ्ट टू राइट ही था. ठीक है, द डायरेक्शन वाज प्रीटी मच एक्यूरेट. दे वरंट much error or uncertainty in the direction. But when we made this smaller, ठीक है, जब हमने ये स्लिट को छोटा और काफी छोटा करने की कोशिश करी, like we were trying to determine the exact position, exact location कहाँ पर photon present है, then what happened is that this uncertainty in momentum became larger. ठीक है, then the photon rather than going straight, it started going in random directions. ठीक है. Got it, sir. Thank you, sir. Alright. हाँ बोलो. Just by what you explained right now, couldn't we have done one thing that when the slit was large, at that time the measurement of momentum was accurate. So we could have taken the reading of the measurement of momentum at that time, and then after making the slit small, we could have taken the reading of the position. But then did we not do that because it would be not simultaneously? हाँ, so आपको ये कोई नहीं कह रहा है दैट आप एग्जैक्ट पोजीशन नहीं डिटरमाइन कर सकते. आप कर सकते हो. आपको ये कोई नहीं कह रहा है कि आप एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं डिटरमाइन कर सकते. आप कर सकते हो. ओनली व्हेन वी ट्राई टू मेजर देम साइमल्टेनियसली वी एनकाउंटर दिस प्रॉब्लम. Yeah, thank you. ठीक है, द वर्ड साइमल्टेनियसली इज आल्सो इंपॉर्टेंट. Yeah. Alright. Sir, हाँ. the uncertainty in momentum, is it only because of the direction, or can there be a change in magnitude as well? Well, depends upon you know
द ऑब्जर्वेशन हम लोग किस पर कर रहे हैं, ठीक है। राइट नाउ ये जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिखा है, डिस्कस करा है, ठीक है, फोटॉन्स के बारे में जो दिया है, तो फोटॉन्स में कैसा है, स्पीड तो कांस्टेंट है, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, Yes, ठीक है। sir. तो वो डायरेक्शन के फॉर्म में मैनिफेस्ट कर रही है, ठीक है। एंड आई Okay, sir. थिंक बाकियों के केस में भी वैसा ही रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप नोटिस करोगे, मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स अभी लिखवाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो एक स्टेटमेंट ये आपके सामने आएगा जिसमें आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम, ये सेम डायरेक्शन की ही होती है, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ, मैं इस पॉइंट पे आता हूँ, फिर वापस से हम लोग डिस्कस करते हैं ये, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है अभी? Sir, is uncertainty determined in percentage? हाँ हाँ बिल्कुल। Sir, so is there a case when uncertainty is 100%? नहीं 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 अनसर्टेनिटीज जो अनसर्टेनिटीज होती हैं जिनके लिए ये सब डिस्कशंस करे जा रहे हैं, दोज अनसर्टेनिटीज आर स्मॉल अनसर्टेनिटीज ओनली, ठीक है, Yes, sir. जिन पर ही मैथ्स वर्कआउट करी जाती है। कैलकुलस में आप जैसे सीखते हो ना, जो dx होता है हैज टू बी मच मच लेसर देन x। Calculus start नहीं हुआ है. कैलकुलस स्टार्ट नहीं हुआ है No, sir. अभी, क्या चल रहा है आप लोगों का? Vectors. अच्छा अच्छा, ठीक है। तो थोड़े टाइम में आप, अरे यार फिर तो अभी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कुछ कुछ चीजें आएंगी नहीं आपको समझ में। चलो ठीक है। Sir, so in this x will be tending towards 0, right? dx will be very very small, Yes, sir. ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नोटिस करना इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं विच आई वुड वांट यू टू रिमेंबर, ठीक है, जो आप लोग ध्यान रखोगे आगे गोइंग फॉरवर्ड। क्या रहेगा पहला पॉइंट, जो ये मैंने बताया आपको, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है, दैट इज अ फंडामेंटल रियलिटी, it is applicable at all scales, it is something which is a fundamental truth of the universe, however it is significant at a small scale, ठीक है। ऐसे लार्ज स्केल पर हम उसको इतना सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं, it doesn't play an impact in our calculations, but small scale पर we need to take into that account because it plays an important role in the calculations also, ठीक है। तीसरा पॉइंट नोटिस करना, तीसरा पॉइंट इज अ फेयरली इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो अनसर्टेनिटी या एरर हमने डिस्क्राइब करा है इन हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। स्टेटमेंट वापस क्या था यहाँ पर नोटिस करना, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ऐसा था ना स्टेटमेंट। तो इसमें नोटिस करना दैट इवन इफ, ठीक है, आई हैड द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट, देयर वाज नो ह्यूमन एरर, ठीक है, कुछ भी एरर का सोर्स नहीं हो, ठीक है, बेस्ट इंस्ट्रूमेंट हो, मोस्ट एक्यूरेट पॉसिबल लीस्ट काउंट हो, ठीक है, कोई ह्यूमन एरर नहीं हो, तब भी इतनी अनसर्टेनिटी तो रहेगी ही रहेगी, ठीक है, दैट इक्वालिटी विल होल्ड ट्रू, एंड दिस इज समथिंग विच इज बिकॉज ऑफ द डुअल नेचर ऑफ मैटर, दिस इज द फंडामेंटल रियलिटी दैट अगर हम पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे तो उनकी एरर्स, उनकी अनसर्टेनिटीज कम से कम इक्वालिटी से रिलेट करेंगी, ठीक है। बट अगर मान लो आपके पास में और भी कुछ सोर्सेज ऑफ एरर आ गए, अनसर्टेनिटीज के और भी कुछ सोर्सेज आ गए, तो इससे ज़्यादा भी हो सकती है, बट कम से कम तो उतनी होगी ही होगी। तो ऐसा नहीं है दैट अनसर्टेनिटी या एरर जो हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के स्टेटमेंट में डिस्क्राइब कर रहे हैं, दे आर रिलेटेड विद इंस्ट्रूमेंट का एरर या एनी ह्यूमन एरर, ठीक है। दे आर जस्ट द वे
our universe is designed. Even if you had everything best possible to make the observation based on what we understand in science today, the equality will hold true. इतनी at least इतनी uncertainties होंगी ही होंगी. ठीक है, समझ में आया थर्ड वाला पॉइंट? हाँ बोलो बोलो, कुछ डाउट है? So can you just explain the part where you're involving the dual nature of matter in this? नहीं तो उसमें the thing was that if you ask me that why is Heisenberg uncertainty principle there, ठीक है, the only background that I can give you is that it is because of the dual nature of matter, the way in which we understand that both particle nature and wave nature are exhibited. ठीक है, although यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है, फिर मैथ्स होती है, ठीक है, और उस मैथ से फिर ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इमर्ज होके आता है, बट वो जर्नी हमारे बस की नहीं है. Yeah, got it. ठीक है, Yes, thank you. ऑलराइट. एक और स्टेटमेंट यहाँ पे ऑब्जर्व करना विच आई वुड वांट यू टू रिमेंबर, एंड दिस इज गोइंग टू बी अगेन एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट. जो ये हमारा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का रिप्रेजेंटेशन है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, इसमें जो मेजरमेंट है अनसर्टेनिटी इन डायरेक्शन या मेजरमेंट है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का, दे मस्ट बी अलोंग द सेम डायरेक्शन ओनली. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको दिखाया था, जो वीडियो आपके साथ शेयर किया था, उसमें अगर मैं स्लिट्स को वर्टिकली क्लोज कर रहा हूं तो प्रोजेक्शन मेरा कैसा फैल रहा था? वो वीडियो में नोटिस किया था आपने? Yes, sir. अगर उसमें एक्चुअली हाँ, उस वीडियो में हॉरिजॉन्टली स्लिट को लाइक क्लोज करा था. ठीक है, अगर मैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ये ऐसे अंदर बाहर का डायरेक्शन मान लो, अगर मैं हॉरिजॉन्टली स्लिट को क्लोज कर रहा था तो प्रोजेक्शन कैसा फैल रहा था? प्रोजेक्शन भी हॉरिजॉन्टली फैल रहा था. चाहिए तो एक बार दोबारा देख लो वीडियो, आपको उसमें दिखेगा. अगर मैं इन्हीं स्लिट्स को वर्टिकली क्लोज करूंगा, ठीक है, रादर देन हॉरिजॉन्टली, इफ आई क्लोज देम वर्टिकली, तो प्रोजेक्शन कैसे फैलेगा? वर्टिकली वर्टिकली फैलने लग जाएगा. ठीक है, सो जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, दे आर मेजर्ड अलोंग द सेम डायरेक्शन. ठीक है, अनसर्टेनिटी से अलोंग वाई एक्सिस एंड पोजीशन अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन अलोंग वाई एक्सिस एंड मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, इन दोनों के बीच में ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होल्ड करता है. ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बोलो कि सर पोजीशन तो हम लोग वाई एक्सिस के अलोंग मेजर कर रहे हैं और मोमेंटम जेड एक्सिस के अलोंग, तो उनके बीच में प्रिंसिपल अप्लाई होगा क्या? द आंसर इज नो. उनके बीच में प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा. प्रिंसिपल अप्लाई होता है फॉर पोजीशन एंड डायरेक्शन विच आर मेजर्ड अलोंग द पोजीशन एंड मोमेंटम विच आर मेजर्ड अलोंग द सेम डायरेक्शन. ठीक है, ये समझ में आया? तो ये इतने पॉइंट्स आप लोग ध्यान में रखोगे. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स जब कैलकुलेशंस आप लोग करोगे तो उसमें थोड़े बहुत सिंप्लीफिकेशंस आपको यूज करने रहेंगे. जो डेल्टा पी है उसको हम लोग एम डेल्टा वी भी लिख सकते हैं. ठीक है, एंड दिस एम डेल्टा वी में एम विल बी द मास ऑफ द पार्टिकल एंड डेल्टा वी विल बी द एरर और अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, तो ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था और उसके लाइक पीछे की बैकग्राउंड थ्योरी थी.
नाउ न्यूमेरिकल्स जो रहेंगे इसके एक्सट्रीमली सिंपल, एकदम बेसिक फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, आपके सामने आएंगे। तो आप ये वाला फटाफट एग्जांपल मुझे बताओ, क्या आंसर रहेगा इसका। फॉर्मूला आपके सामने है, सिंपल एप्लीकेशन है। ऑलराइट, आंसर आ गया आप लोगों का। ठीक है, काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, डेल्टा वी इज 0.1% ऑफ वी, तो यू गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी, और इसको अब आप उस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको डेल्टा एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, बी ऑप्शन इज कमिंग आउट एज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कैलकुलेशन वगैरह बहुत सिंपल है। ऑलराइट, अच्छा, देन आफ्टर दिस अब मैं आपके साथ में वैसे तो मुझे लग रहा था कि आप लोगों ने शायद कैलकुलस पढ़ लिया होगा, ठीक है, बट आई थिंक आप लोगों ने कैलकुलस अभी पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं ये वाला टॉपिक आपको तभी पढ़ा पाऊंगा जब आप लोग कैलकुलस पढ़ लोगे। ठीक है, अदरवाइज इस टॉपिक को मुझे होल्ड पे रखना पड़ेगा। ठीक है, ये टॉपिक कैसा है, ये टॉपिक कुछ इस तरीके से है दैट अगर दो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप हमें दिया हुआ है, तो उनकी अनसर्टेनिटी का रिलेशनशिप कैसा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर पोजीशन एंड सॉरी मोमेंटम एंड वेलोसिटी का आपने देखा, मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हम लोगों ने कैसे रिलेट कर दिया। बट अगर रिलेशनशिप लीनियर नहीं है, ठीक है, नॉन लीनियर है, ठीक है, देन आपको अनसर्टेनिटी रिलेट करने के लिए कैलकुलस लगता है। ठीक है, अलजेब्रा से भी कर सकते हो आप, बट बेटर रहेगा कि आप कैलकुलस सीख लो, तो उसके बाद अपन ये टॉपिक फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको होल्ड पे रख रहा हूँ। ठीक है, ये कैलकुलस वाला पार्ट आपने पढ़ा नहीं है, तो ये इतना पार्ट हम लोग जाने देते हैं। ठीक है, राइट नाउ लेट्स नॉट लुक इनटू द डेरिवेशन, आप सीधे सीधे ये रिजल्ट याद रख लो। ठीक है, अगर दो वेरिएबल y और x नॉन लीनियरली रिलेटेड है, ठीक है, नॉन लीनियरली मतलब y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x नहीं है, y इज इक्वल टू k इंटू एक्स की पावर समथिंग n, तो फिर डेल्टा y और डेल्टा x कैसे रिलेटेड होगा, जो अनसर्टेनिटी रहेगी इन दोनों की,
जो एरर रहेगा वो इस तरीके से रिलेट होगा, डेल्टा वाई अपॉन वाई विल बी इक्वल टू n टाइम्स डेल्टा x अपॉन x। ठीक है, रिजल्ट याद रख लोगे। डेरिवेशन बहुत सिंपल है, कैलकुलस से आ जाएगा, बट अभी के लिए आप इतना याद रख पाओगे। यस सर। तो एक क्वेश्चन मुझे, एक दो क्वेश्चन फटाफट फटाफट यहाँ पे, लाइक एक ही क्वेश्चन है, चलो एक ही क्वेश्चन करके दिखा दो। मैंने आपको एक पार्टिकल दिया है ऑफ मास m, इट इज मूविंग विद द स्पीड v, ठीक है, एंड द अनसर्टेनिटी इन इट्स स्पीड इज डेल्टा v। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी दिस अनसर्टेनिटी इन इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ? आया कुछ? मतलब ऐसे है, लैम्डा और v का रिलेशनशिप आपको आता है? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी, है कि नहीं? I can write this as lambda is equal to h upon m into v की power -1. So delta lambda by lambda, ये h by m तो कांस्टेंट हो गया, इसको अलग कर दो, ये -1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला जैसा है, इंटू डेल्टा v बाय v, है कि नहीं? ठीक है, तो डेल्टा लैम्डा कितना आ जाएगा? डेल्टा लैम्डा आ जाएगा माइनस लैम्डा h अपॉन एम वी इंटू डेल्टा v, राइट। एंड लैम्डा दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो लैम्डा को मैं वापस क्या पुट कर दूंगा? h अपॉन एम वी पुट कर दूंगा, तो कितना आ रहा है मेरा डेल्टा लैम्डा? डेल्टा लैम्डा आ जाएगा माइनस एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू डेल्टा वी। आया रिजल्ट? हाँ, So why have we taken the -1 after h divided by m? आप ये फॉर्मूला नोटिस करो ना, ये फॉर्मूला से मैंने यूज करा ना यहाँ पर, ये मेरा y है, ठीक है, दिस इज माई y एंड दिस इज माई x। नाउ कैन यू रेप्लिकेट व्हाट वाज डन इन दिस फॉर्मूला ओवर हियर? Yes, sir. ठीक है, आपको अभी थोड़ा सा लाइक वियर्ड लग रहा होगा क्योंकि आपने कैलकुलस नहीं पढ़ा, जब आप कैलकुलस पढ़ लोगे तो आई थिंक ये प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। अभी मैं आपको जस्ट ये जनरल फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। In fact,
मैंने शायद कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना। ये h/m, ये v की पावर -1/v और लैम्डा h/mv। एक मिनट। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv d लैम्डा बाय dv माइनस h/mv स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर I would say delta lambda upon lambda is equal to h/m, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया, into delta v upon v। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक मिनट dy बाई dx यहाँ पर हो जाएगा k टाइम्स n x की पावर n-1, so k into n into x की पावर n upon x, and this thing becomes y, so dy by y is equal to n dx upon x, है ना, यही बन रहा है। तो फिर ये मेरा आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा? Sir, हाँ, sir, why have you substituted h upon m? That is k. No, in the formula there is no k. in y have I substituted what? You have substituted the constant h upon m, but in the formula there is only n, the power. अच्छा हाँ, तभी मैं सोचूं कि गड़बड़ कहाँ आ रही है। करेक्ट, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी। हाँ, इसलिए स्क्वायर सिर्फ v के साथ रहेगा। हाँ, अभी ठीक है, करेक्ट। सो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू माइनस h/mv स्क्वायर डेल्टा v। ठीक है, एनीवेज, तो ये अनसर्टेनिटीज रिलेट करनी आएंगे आपको बिटवीन टू वेरिएबल्स विच आर नॉन लीनियरली रिलेटेड। ठीक है, इस फॉर्मूला के बेसिस पर। ठीक है, अच्छा, नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस रहेगा यहाँ पर? व्हाट वुड द नेगेटिव साइन मीन? द नेगेटिव साइन इज बिकॉज यहाँ पे आप नोटिस करना लैम्डा और v जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करना जो v की अनसर्टेनिटी है वो अगर पॉजिटिव में है, ठीक है, मतलब मैं ऐसा कह रहा हूं कि लेट्स से अगर ये v का स्केल है, ठीक है, अगर ये v है और इसके करस्पॉन्डिंग मैं लैम्डा के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस v के करस्पॉन्डिंग लेट्स से ये लैम्डा है ना, बट अगर मेरी अनसर्टेनिटी इन v पॉजिटिव में है, मतलब v यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ हो सकता है। ठीक है, इफ दिस इज माय डेल्टा v एंड v प्लस डेल्टा v, तो जो मेरा लैम्डा होगा, ठीक है, लोअर v के लिए तो हायर वैल्यू ऑफ लैम्डा रहेगा और हायर वैल्यू ऑफ v के लिए लैम्डा का वैल्यू कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये मेरा लैम्डा रहेगा और मेरी जो रेंज रहेगी लैम्डा की वो कैसी रहेगी? माइनस डेल्टा लैम्डा।
तो ये नेगेटिव साइन समझ में आया? नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? बिकॉज v एंड lambda आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर. या मैं वैल्यूज लेके बताऊं, चलो आपको वैल्यूज लेके बताता हूँ, देन आई थिंक इट विल बी अ बेटर एक्सरसाइज फॉर यू. अगर मैं किसी मेजरमेंट में लैम्डा की वैल्यू 100 बता रहा हूँ, ठीक है, सो मेरा जो v है वो लेट्स से 10 है एंड लैम्डा जो है वो 100 है, ठीक है. अगर मैं v का वैल्यू 11 कर देता हूँ तो लैम्डा कितना हो जाएगा? 100 से ज़्यादा होगा, 100 से कम होगा? कम हो जाएगा, ठीक है. लेस देन 100 हो जाएगा, से 90 हो जाए, ठीक है. आई डोंट केयर कितना कम हो जाए, बट कम हो जाएगा. तो कैन यू सी दैट अगर डेल्टा वी पॉजिटिव है तो डेल्टा लैम्डा कैसा होगा? नेगेटिव होगा ना. अगर v बढ़ रहा है तो लैम्डा घट रहा है, तो दैट इज व्हाई दिस नेगेटिव साइन कम्स ओवर हियर. अनसर्टेनिटी जो मैं लैम्डा और v के बीच में रिलेट कर रहा हूँ. अभी समझ में आया व्हाई द नेगेटिव साइन केम? हाँ. So we are getting the delta lambda by final minus initial. That's why the negative sign, right? हाँ. That 90 minus 100, so minus 10. Correct, That's correct. Change is always final minus initial. Okay, yeah, thank you. ठीक है. So we'll get a minus sign whenever it's inversely related. Yes, yes, we should. Okay. अगर डायरेक्टली रिलेटेड होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे काइनेटिक एनर्जी एंड v की अनसर्टेनिटी रिलेट करने के लिए बोलूँगा, तो आप कैसे बोलोगे? k इज इक्वल टू हाफ mv², है ना. तो यहाँ पर डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है. डायरेक्टली इन द सेंस दैट इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है. अगर v बढ़ेगा तो k भी बढ़ेगा, तो इनका जो अनसर्टेनिटीज है उनके बीच में भी पॉजिटिव साइन ही रहेगा, ठीक है. कैसा रहेगा क्या आप निकाल के बता सकते हो मुझे? काइनेटिक एनर्जी और स्पीड की अनसर्टेनिटी रिलेट कर सकते हो यूजिंग दैट फॉर्मूला जो हमने ऊपर लिखा था? कैसा हो जाएगा? डेल्टा के ई अपॉन के ई विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा वी बाय वी. ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा तो, है कि नहीं? Yes, sir. और जो के ई है उसको मैं हाफ mv² लिख देता हूँ. सो डेल्टा के ई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये जो के ई है इसको मैं हाफ mv² लिख देता हूँ इंटू डेल्टा वी बाई वी, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा. तो डेल्टा के ई इज इक्वल टू एम वी डेल्टा वी आ गया. तो इस तरीके से आप अनसर्टेनिटीज बिटवीन नॉन लीनियरली रिलेटेड वेरिएबल्स लिख सकते हो. वुड दैट बी डूएबल? Yes, sir. ठीक है. तो इसका एज सच ये थोड़ा मैथमेटिकल वाला पार्ट है जिसमें अनसर्टेनिटीज बिटवीन नॉन लीनियर वेरिएबल्स लिखना होता है, तो थोड़ा सा मैथ्स करना पड़ता है. अदरवाइज इट इज अ प्रीटी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कशन, ठीक है. एंड लास्टली ये वाला एक छोटा सा सब टॉपिक देख लो, ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया कि पोजीशन एंड मोमेंटम दो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, ऐसी वेरिएबल्स हैं जो कि हमारा फोकस रहेगा. बट इसके अलावा देर आर मेनी अदर वर्जन्स ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑल्सो, जिसमें से आई वुड लाइक यू टू नो दीज टू ऑल्सो एटलीस्ट, ठीक है. जस्ट इनका सिंबल और इनका जो टर्म्स है उनका डिस्क्रिप्शन उतना ध्यान रख लो, ठीक है. बाकी डेप्थ में जाके तो आपको ज़्यादा रिसर्च करनी नहीं है इसमें, ठीक है. जस्ट इतना पता होना चाहिए. तो एक तो था पोजीशन एंड मोमेंटम वाला जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो वैसा ही रहता है एक एंगुलर पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम, ये भी आपस में हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है. आप एग्जैक्ट एंगुलर पोजीशन और एग्जैक्ट एंगुलर मोमेंटम नहीं डिटरमाइन कर सकते हो, देयर अनसर्टेनिटीज आर रिलेटेड, ठीक है.
देन ये जो दूसरा वाला वर्जन है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है इफ समडे यू गेट अ चांस टू एक्चुअली गो डीपर इनटू दिस। अभी अपने सिलेबस में तो नहीं मिलेगा आपको मौका इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाने का, बट डेल्टा ई एंड डेल्टा टी, ठीक है, व्हाट इज ई एंड टी? ई इज द एनर्जी associated with the system, and what is t? T is the time that the system will spend in that energy level, in that energy state, उसको ऐसे लाइफ स्पैन बोलते हैं, ठीक है, द टाइम स्पेंड इन दैट एनर्जी स्टेट। ये दोनों भी आपस में रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जितना एक्यूरेटली मैं एनर्जी मेजर करने की कोशिश करूंगा उतना ही the lifespan or the time spent in that energy state would become uncertain, ठीक है। ये एक और वर्जन रहता है, ऊपर ऊपर से ध्यान में रहना चाहिए। तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, वी टुक सम टाइम इनटू इट, बट आई होप आप लोगों को ये स्टेटमेंट्स वगैरह आप अच्छे से समझ में आए होंगे, बेटर देन जस्ट रेक्टिफाइंग देम, although we will not get into the derivation of it, but it should give you a much better feel as compared to just blanket reading of the statements, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एंड वी का आप ये देख लो ना, तो उसके पहले वाला ये वाला वेवलेंथ इस वाला yes sir I didn't understand that one। आपको सिर्फ मैथ्स करनी है। आप ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे अपने लिखा है आप इस पे अप्लाई करो ना। Yes, sir. But then, sir, after that, you had made some change in it when you had done it on the sides. I didn't understand that part. चलो मैं दोबारा कर देता हूँ आपके लिए फटाफट। कैन यू सी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी की पावर -1, Yes, sir. है ना। इफ दैट इज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप, लाइक दिस इज योर वाई एंड दिस इज योर एक्स, कैन यू सी हाउ देयर अनसर्टेनिटीज आर रिलेटेड? Yes, sir. कैसा रिलेशन है? डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू -1 टाइम्स डेल्टा एक्स बाय एक्स, है ना। Yeah, yeah. ठीक है, मतलब ये जो v है एक्चुअली ये आपका x है ना। तो आई वुड से दैट डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा v अपॉन v, है ना। Yes, sir. तो डेल्टा लैम्डा कितना हो गया? माइनस लैम्डा बाय v इंटू डेल्टा v, Hmm. और लैम्डा क्या होता है? h अपॉन एम वी, Yes, sir. ठीक है अभी। Yes, sir. I understood. Thank you so much. Alright. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर यहीं से आगे कंटिन्यू करके विल मूव ऑन टू द बोर्ड्स सॉरी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इन द मीन टाइम आई विल आस्क यू टू डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस एंड डी ब्रॉगलीज, वो आप लोग ट्राई करना एंड डिस्कस करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। Sir, हाँ sir, yesterday I was searching a bit about de Broglie's theory, and हम्म, I found out de Broglie's theory was more predictable, and it could predict there is uncertainty in this theorem, right? So I heard that people neglected the theory for a long period of time, even हाँ though it was predictable. Why so? प्रेडिक्टेबल इन द सेंस, मतलब तो ये तो मैंने आपके साथ बोला ही था ना, दैट डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस था, ठीक है, हाइजेनबर्ग का जो ये प्रिंसिपल है, ये दोनों जो डिस्कवरीज हैं they were neglected by the scientific community because they fundamentally changed the way in which our thinking was। क्योंकि इसके पहले कैसा था? the thinking was in terms of particle nature only, जो जितनी भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जितनी भी फिजिक्स पढ़ी गई समझी गई, ठीक है, उस सब में कैसा था? पार्टिकल तो पार्टिकल है और उसके साथ में एसोसिएटेड उसकी प्रॉपर्टीज हैं और उसके लॉज हैं, ठीक है। तो वो पूरी अंडरस्टैंडिंग was based on particle nature only, but what de Broglie said was कि
ये बात सही है, अच्छी है और काम भी करती है माइक्रोस्कोपिक स्केल पर, ठीक है, जो हमारा टेनिस बॉल का स्केल है। लेकिन जब हम लोग एटॉमिक स्केल पे जाते हैं, स्मॉल स्केल पर, तो लॉज बदल जा रहे हैं। द वे इन विच थिंग्स आर हैपनिंग आर नॉट गवर्न्ड बाय द सेम बेसिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उन सब से नहीं एक्सप्लेन हो पा रहा है। वाई? बिकॉज वहाँ पर पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर बोथ आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल, बोथ आर सिग्निफिकेंट। तो हम वेव नेचर को इग्नोर नहीं कर सकते कि सिर्फ पार्टिकल नेचर लेकर आगे बढ़ जाएं। अगर हमें पूरी पिक्चर समझनी है, समझना है डिटेल्स, तो वील हैव टू टेक इनटू अकाउंट बोथ ऑफ देम टुगेदर। एंड by accepting that reality, by accepting that nature of universe, we will be able to determine or understand things better, especially at small scale. And इस सब चीज़ में फिर टाइम लगा, ठीक है। साइंटिफिक कम्युनिटी ने ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट कर लिया, एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशंस लगे, एंड देन इट it is still debated, it is still something which is like the scientific community has debate with। क्यों? क्योंकि अब जैसे ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसका एक बहुत ही प्रोफाउंड मीनिंग क्या आ गया है, दैट जो यूनिवर्स है वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, वो प्रोबेबिलिस्टिक है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो एक नई रियलिटी प्रेजेंट करता है, जो कि इसके पहले साइंस में नहीं मानी जाती थी। क्योंकि इसके पहले साइंस में ऐसा माना जाता था कि अगर हम लोग किसी सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं और उसकी गवर्निंग लॉज हमें पता हैं, तो हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज डिटरमाइन कर सकते हैं। द सिस्टम इज डिटर्मिनिस्टिक। बट after Heisenberg's uncertainty principle, that entire perspective changed from deterministic to probabilistic, कि हम लोग exactly तो बात ही नहीं कर पाएंगे। There will be some properties of the system जिनको हम लोग probability के point of view से ही बोल पाएंगे, exact nature से नहीं बता पाएंगे उनके। ठीक है, so this is something which was very uncomfortable for a lot of scientists। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। Or हाँ, the other versions of the Heisenberg's uncertainty principle, where are they applicable? They are applicable when we are studying those properties। ठीक है, if I am let's say discussing these properties of the system, तब ये सब प्रिंसिपल अप्लाई करने होते हैं और समझना होता है। बट अभी के लिए अपने सिलेबस के हिसाब से हम लोग सिर्फ पोजीशन मोमेंटम और उसका एप्लीकेशन देख रहे हैं। Okay, so no application for us right now. नहीं, नॉट राइट नाउ, ओनली व्हेन यू डिसाइड टू परस्यू कि हाँ मुझे इसी में आगे रिसर्च करना है, तो फिर ये आपके लिए और ओपन अप होगा। Okay, sir. Thank you. ठीक है, ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? चलो ठीक है, फिर आज का डिस्कशन यही क्लोज करते हैं। थैंक यू गाइस। आई शेयर द होमवर्क, वो आप ट्राई करना, देन नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे।